Well, so we just discussed the basics. What is P&L appropriation account? Taking the base of 11th standard P&L account, we understood what is P&L appropriation account. In one line, if we say, it's only the technique, you can say, it's not the proper definition. In 12th standard, to record the transactions between the firm and the owners, we prepare a separate account which is known as what? P&L appropriation account. Well, I have drawn the format of P&L appropriation account taking few items. ये फॉर्मेट है P&L appropriation account का. Order wise P&L appropriation account is prepared after profit and लॉस अकाउंट. जैसे कि हमने बात की पार्टनरशिप फर्म्स में पहला ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो ऑर्डर वाइज इट कम्स आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो वहां से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो दैट कम्स ओवर हियर. फर्स्ट आइटम in P&L appropriation account on credit side is by net profit transferred from profit and loss account, and if there is a net loss in P&L account it comes on debit side to net loss transferred from profit and loss account. If you refer the debit side of P&L appropriation account, अगर आप debit side की बात करो P&L appropriation account की, तो I have written 3 examples. to interest on capital, पार्टनरशिप फर्म में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए. से देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फिर मान लो अगर बी को कोई सैलरी मिल रहा है तो 2 पार्टनर्स सैलरी, ए को कमीशन मिल रहा है तो 2 कमीशन गिवन टू ए. तो डेबिट साइड ऑफ P&L appropriation account we record all expenses of the firm towards the owners. वो हमने डिस्कस किया था that P&L appropriation records all expenses towards the owners. तो डेबिट साइड हमने सारे expenses लिखे हैं of the firm towards the owners. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करता है ओनर को, पार्टनर सैलरी फर्म पे करता है ओनर को, पार्टनर्स कमीशन फर्म विल पे टू द ओनर, ओनर्स मींस पार्टनर्स. क्रेडिट साइड आई हैव टेकन ओनली वन आइटम. पहले तो नेट प्रॉफिट जो वहां से आया P&L अकाउंट में से, एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. क्रेडिट साइड ऑफ P&L appropriation account records all incomes of the firm from the owners या पार्टनर्स. तो एक एग्जांपल लिखा है हमने बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. नाउ if your credit side total is higher in P&L appropriation account, the difference we get is termed as net divisible profit. अगर क्रेडिट साइड हायर आ रही है, क्रेडिट साइड हायर आ रही है, तो जो डिफरेंस आता है वो है नेट डिविजिबल प्रॉफिट. इट इज टर्म्ड एज नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो फाइनली पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो नेट डिविजिबल प्रॉफिट इफ क्रेडिट साइड टोटल इज हायर which gets distributed between the partners in profit sharing ratio. If your debit side is higher, it's a net divisible loss, and that also gets distributed between partners in their profit sharing ratio. So this is the format of P&L appropriation account, guys. Few items I have taken. आगे हम जाएंगे तो we'll add few more items, but in as a technique, in short you can remember, ये टेक्निक है, इसको डेफिनेशन नहीं कहते. P&L appropriation account records transactions between the firm and the owners. Then P&L appropriation account is just an extension of profit and loss account. Well, P&L account का ही extension माना जाता है P&L appropriation account. तो ये लाइन भी हम लिख सकते हैं for explanation of P&L appropriation account के P&L appropriation account is an extension of profit and loss account. Then it is not compulsory
it is not compulsory to prepare P&L appropriation account. Well, Partnership Act has not made P&L appropriation account compulsion. जरूरी नहीं है to prepare P&L appropriation account. अगर appropriation है तो आप बनाओ, अगर appropriation of profit नहीं है then there is no requirement to prepare P&L appropriation account. Now appropriation है कि appropriation नहीं है means what, तो आगे हम समझ रहे हैं, but right now only remember कि it is not compulsory to prepare P&L appropriation account. The net result of P&L appropriation account is termed as net divisible profit या net divisible loss. The way net result of trading account is termed as gross profit या maybe gross loss, net result of profit and loss account is termed as net profit or net loss. उसी तरह the net result of P&L appropriation account will be termed as net divisible profit या net divisible loss, which finally gets distributed between the partners in profit sharing ratio. Well, अगर आप P&L appropriation account नहीं बनाते तो जो नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहीं पे वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. द नेट प्रॉफिट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाउ ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ध्यान रख सकते हो. whenever you want to write something about P&L appropriation account, that it records transactions between the firm and the owners. It is just an extension of profit and loss account. It is not compulsory to prepare P&L appropriation account as per Partnership Act 1932, and the net result is termed as net divisible profit या net divisible loss. अब जो उसका real definition है, if you are asked what is P&L appropriation account, तो as a point ये लिख सकते हो, but this is not a proper definition that it records transactions between owners and the firm. No, उसका correct definition यहाँ पे मैंने लिखा है guys. Now we will understand the main concept of P&L appropriation account. Definition: P&L appropriation account is prepared to show appropriation of profits. क्यों बनाते हैं P&L appropriation account? To show appropriation of profits. Appropriation of profits, that is how the net profit, that is how the net profit gets appropriated. Appropriated का मतलब distributed in different forms between partners. तो ये इसका real definition है. P&L appropriation account is prepared to show appropriation of profits, that is how the net profit gets distributed between the partners, how the net profit gets appropriated between the partners in different forms. तो वो दिखाता है P&L appropriation account. Now इसका मतलब क्या, इसको हम समझते हैं. Appropriation, distribution of net profits in different forms, इसका मतलब क्या, let us understand. तो डेफिनेशन आपने पढ़ा. वेल, अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है. लेट अस अंडरस्टैंड दैट विथ एन एग्जांपल गाइस ओवर हियर. से वन ऑफ योर फ्रेंड, उसको जॉब पे इंटरव्यू हुआ एंड ही गॉट सिलेक्टेड. अच्छा, the HR person, he
told your friend कि उसको बेसिक पे मिलेगा 15,000, डीए डियरनेस अलाउंस मिलेगा 5,000, पेट्रोल रीइंबर्समेंट उसको मिलेगा से 3,000 एंड टेलीफोन रीइंबर्समेंट उसको मिलेगा से 2,000। ऐसा करके he will get a total 25,000 rupees per month। उसको कितना पैकेज दे रहे पर मंथ 25,000। अगेन विल सी द एग्जांपल। एक आपका फ्रेंड है जिसको जॉब पे इंटरव्यू हुआ एंड ही इज ऑन द फाइनल स्टेज, सो एचआर पर्सन इज डिस्कसिंग द पैकेज एंड ही टोल्ड योर फ्रेंड कि भाई आपको बेसिक पे हम देंगे 15,000, डियरनेस अलाउंस हम देंगे 5,000, पेट्रोल रीइंबर्समेंट हम देंगे आपको 3,000 और टेलीफोन यूज जो करोगे आप उसका भी रीइंबर्समेंट कंपनी देगी 2,000। ऐसा करके आपको पर मंथ हम 25,000 देंगे। नाउ ही केम फ्रॉम द इंटरव्यू एंड आप सबने पूछा उसको कि भाई आपको कितना पैकेज मिला, तो उसने कहा कि भाई मुझे बेसिक देगा 15,000, हाँ डियरनेस अलाउंस मिलेगा 5,000, पेट्रोल रीइंबर्समेंट मिलेगा 3,000। तो यू विल टेल भाई टोटल बोलना कितना मिलेगा, तो यू विल से 25,000। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। कंपनी भी डायरेक्टली, वो जो एचआर का पर्सन था वो भी डायरेक्टली बोल सकता था कि भाई हम आपको 25,000 देंगे। व्हाई ही टेल्स के 15,000 बेसिक पे दूंगा, डियरनेस अलाउंस 5,000 दूंगा, 3,000 पेट्रोल रीइंबर्समेंट, 2,000 टेलीफोन रीइंबर्समेंट। ही कुड हैव टोल्ड ने डायरेक्टली कि भाई 25,000 पर मंथ हम आपको सैलरी देंगे। एज सच इज गेटिंग 25,000। बट गाइस अगर कंपनी की बात करें तो these all additional benefits they are known as perquisites। उसको हम क्या बोलते हैं? perquisites। तो from the angle of the company and from the angle of the receiver, that is your friend, तो few perquisites are not taxable। उस पे टैक्स नहीं लगता, मतलब वो इनकम टैक्स में डिटेल में जाना पड़ेगा, we don't go to that, but फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वो परक्यूसिट्स बोलते हैं एडिशनल बेनिफिट, तो उस पे टैक्स नहीं लगता अप टू सर्टेन एक्सटेंट। तो कंपनी को भी ये ब्रेकअप देने में फायदा है और इवन आपके फ्रेंड को भी फायदा है ऐसे अगर ब्रेकअप दे तो। हाँ अगर कंपनी डायरेक्टली 25 दे और ऐसे बेसिक 15 फिर 5 ये तो उसका इस पे थोड़ा टैक्स सेविंग होगा। ओके, अब द सेम केस अप्लाइज हियर आल्सो। इफ यू अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल, ये जो 25,000 कंपनी उसको दे रही है, कंपनी कुड हैव गिवन डायरेक्टली आल्सो, बट ये जो 25,000 है कंपनी इसको अलग अलग फॉर्म्स में दे रही। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अलग अलग फॉर्म्स में दे रही है। सर्टेन पोर्शन द कंपनी इज गिवन एज अ बेसिक पे, सर्टेन पोर्शन द कंपनी इज गिवन एज अ डियरनेस अलाउंस, सर्टेन पोर्शन द कंपनी इज गिवन एज अ पेट्रोल रीइंबर्समेंट एंड सर्टेन पोर्शन द कंपनी इज गिविंग एज अ टेलीफोन रीइंबर्समेंट। तो यहां पे जो 25,000 है टोटल, उसका उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन करना गाइस। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब to distribute this figure in different forms। देखो अलग अलग फॉर्म्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया 25,000 इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग 25,000। द फर्स्ट फॉर्म था बेसिक पे, सेकंड फॉर्म था डियरनेस अलाउंस, थर्ड पेट्रोल एंड फोर्थ वाज टेलीफोन। एज सच इज गेटिंग 25,000 और यहां पे भी उसको 25,000 ही मिल रहा है। तो गाइस द सेम एग्जांपल यू कैन कीप ओवर हियर। नेट प्रॉफिट मान लो यहां मैं लिख देता हूं 25,000, या यू कैन से
23,000 प्लस ये 2,000 इंटरेस्ट ले लेते तो टोटल नेट ये जो है 25,000 वो यहां आ गया। अब ये 25,000 को हम अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनमें ओनर्स में। यस और नो? ये 25,000 को हमने अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से देंगे, दूसरा सैलरी के हिसाब से देंगे, तीसरा बोनस या कमीशन के हिसाब से देंगे। तो दिस 25,000 यू आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स। मान लो अगर आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हो, सैलरी भी नहीं दे रहे हो, कमीशन भी नहीं दे रहे हो, देन व्हाट हैपेंस? ये क्रेडिट 25,000 डायरेक्टली 25,000 यहां आ जाएगा। इसमें से डेबिट साइड तो कुछ है नहीं माइनस करने का, तो डायरेक्टली दिस 25,000 बिकम्स नेट डिविजिबल प्रॉफिट और 25,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वेदर यू डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट फॉर्म्स या यू डोंट डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट फॉर्म्स, पार्टनर्स को तो इन टोटल कितना मिल रहा है? 25,000 ही मिल रहा है। खाली फर्क यह है गाइस कि यहां पे 25,000 अगर आप अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इफ यू डोंट गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, देन डायरेक्टली 25,000 goes to them as net divisible profit। बट अगर आपको डायरेक्टली नेट डिविजिबल प्रॉफिट नाम से 25,000 नहीं देना, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो अलग अलग फॉर्म में। थोड़ा जाएगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थोड़ा जाएगा एज पार्टनर सैलरी, थोड़ा जाएगा एज कमीशन, बट इन टोटल तो उनको उतना ही मिल रहा है। आर यू गेटिंग मी गाइस? तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है distributing the net profit in different forms। इसका मतलब appropriation। तो अब I think you are clear with this definition। P&L appropriation account is prepared to show the appropriation of net profit, how the net profit gets distributed, appropriated between the partners in different forms। ये actual meaning है P&L एप्रोप्रिएशन का, ये एक्चुअल डेफिनेशन है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसीलिए गाइस इसको टाइटल, ये अकाउंट को टाइटल भी हम क्या करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन दिखाया जाता है, दैट हाउ द नेट प्रॉफिट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। So I suppose you are clear with the definition. So be careful that whenever you are asked definition, you have to write this: P&L appropriation is prepared to show distribution of profits in different forms, to show appropriation of profits in different forms. So guys, this was entire explanation of P&L appropriation account. Now we'll understand the account with one simple example, how to prepare entire P&L appropriation account.